آئے کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر مطلب باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے پائے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک عالم کی کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ جن کے آگے جگہ ہے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ مل سکے۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے پھر ایک بار موقع بخشا اور ہم گنتی کی کتاب میں واپس آئے، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں ہم واپس آئے۔ آج گنتی 16 باب کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن آج اس کی پہلی ایت سے لے کے 22 ایت تک کو ہم سیکھیں گے۔ اگلا حصہ جو اگلے سنڈے بیان کیا جائے گا، کیونکہ اگر پورے کو بولیں گے تو یہ اس کا لمبا ٹائم چاہیے مجھے، اس لیے آج ہاف حصہ اس کا آج ہوگا اور ہاف اگلے سنڈے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے باب میں ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں۔ پیدائش سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، ہم کا شکر ہے کہ آج ہم گنتی 16 باب میں جا چکے ہیں۔ بدھ کی عبادت میں جو میسج ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بدھ کی عبادت میں اب جو میسج ہوا کریں گے وہ سارے روزوں کے یاد میں ہیں، روزوں کے تعلق سے ہوں گے۔ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ روزے کیا ہیں، لیکن وہ میسج جو ہے وہ بدھ والے دن ہوا کریں گے۔ لیکن سنڈے کو جو ہم نے ترتیب رکھی ہے اسی ترتیب پر ہم چلتے رہیں گے۔ آج پھر پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا مریم ہارون کی بغاوت، بنی اسرائیل قوم کی بغاوت، مختلف بغاوتیں ہم نے دیکھی۔ آج ایک اور بغاوت میں ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بغاوت ہوتی ہے، اور جہاں پر بغاوت ہوتی ہے خدا اسی وقت سزا دیتا ہے۔ آج بھی خدا وہی خدا ہے۔ آج بھی کئی بار جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو خدا فوری طور پہ جواب دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ وہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں نہ کریں۔ کئی بار تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں، ایسا کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو جاتا ہے، تو فوری طور پہ خدا کے آگے جھکیں، اس سے معافی مانگ لیا کریں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان خطاؤں کو تسلیم کر لیں، مان لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مان لینا، تسلیم کرنا بڑی بہادری کی بات ہے۔ ایک بندہ غلطی کرے اور پھر اس کو مان جائے کہ جب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آگے والا بندہ جو معاف کر دیتا ہے، اس طرح خدا بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں نہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ہم ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم خدا سے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے گا؟ پڑھیں جی پہلی ایت سے، پہلی ایت
3 ایتیں پڑھ دیں پہلے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اور قرہ بن اظہار بن قحات بن لاوی نے بنی روبن میں سے ایحاب کے بیٹوں داتن اور ابرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا. اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور شیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے, اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے, تمہارے تو بڑے بڑے دعوے ہو چلے, کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے, سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو. یہ ہے ایک بغاوت. قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, یہ روبن کا ہارون کا چچا زاد بھائی تھا, یہ بھی لاوی قبیلے سے تھا, لیکن اس کو کہانت نہیں ملی تھی. کہن جو تھے وہ خدا نے ہارون کے نسل کو چنا تھا کہ ہارون کی نسل جو ہے اس کے بیٹے جو ہیں وہ کہانت کا کام سر انجام دیں گے, وہ بخور جلائیں گے, وہ ہدیے آگے لے کے جائیں گے. خدا نے ان کو مقرر کر رکھا تھا, لیکن قرہ جو ہے وہ اور لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے اور تقریباً 250 لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون کی بغاوت میں اتر آتے ہیں. وہ تسلیم نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں, دوبارہ سے پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے, قرہ بن اظہار بن قحات لاوی نے بنی روبن سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا, اور وہ بنی اسرائیل سے 250 اشخاص جو جماعت میں 250 لوگ اس کے ساتھ آ ملے. کئی بار کوئی غلط بندہ ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو, کسی کے خلاف کر رہا ہوتا ہو, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پرانی دلیلیں دیتا ہے, وہ تیرے خلاف یہ نیا کیتا ہے, یہ تو اس نے یہ کہا تھا, اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ٹولے کو کیا کرتا ہے, بڑھا لیتا ہے. یہاں یہ بھی یہی کام کر رہا ہے, بنی اسرائیل قوم کو وہ ساتھ لیتا ہے اور ان کو کہتا کیا ہے, موسیٰ نے تو وعدہ کیا تھا, خدا نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مصر سے نکالوں گا اور اس ملک میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. یہ دعویٰ کر رہے تھے, اسی سے انہوں نے بغاوت کی, اور وہ بیزار تھے اس بات سے کہ ہم بھی لاوی کے گھرانہ سے ہیں, لیکن آج ہم کہانت کا کام کیوں نہیں کرتے. کہن تو ہارون کا گھرانہ ہے, اس لیے وہ کیا کرتے, ان سے بیزار تھے, ان سے کیا کہ حسرت تھا. جیسے آج بھی حسرت کیا جاتا ہے, اگر خدا آپ کو کوئی برکت دے دیتا ہے, آپ کوئی خدا آپ سے کام لینا شروع کر دیتا ہے, تو آپ کے مخالف جو ہیں, کئی بار آپ کے اپنے جو ہیں وہ بھی آپ کی مخالفت میں اتراتے. میں بھی تو یہ کر سکنا نا, میں بھی تو کر سکتا ہوں, لیکن مت سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں, جب تک خدا نہ چاہے آپ کچھ بھی کر نہیں سے. یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. یہاں پہ خدا کی مرضی تھی, اس نے ہارون کے گھرانے کو چن لیا. ہارون کو کہا کہ آج کے بعد تو کیا کرے گا, تو کہانت کا کام کرے گا, تیری اولاد کہانت کا کام کرے گی. لیکن یہاں پہ یہ جو شخص ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ حوالہ دیتے پچھلا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے, اب یہ اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا, اب یہ غلط کام کر رہا ہے, اور لوگوں کو کیا کر دیتے, اس کی مخالفت میں کھڑا کر دیتے ہیں. آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے, کلیسیا میں ایک بندہ کوئی غلط ہو جائے, پاسٹر کے خلاف بات کر دے, اور آہستہ آہستہ اس کی کوشش ہوتی ہے میرے ساتھ اور فیملیاں بھی مل جائیں, اور بھی مل جائیں, اور لوگ بھی مل جائیں. وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ آپ کسی کو گرا سکتے ہیں, نہ آپ خود سربلند ہو سکتے ہیں جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. اب یہ وہ کیا کریں, یہاں پہ وہ 250 لوگ جو ہیں وہ ہارون اور ان کے ساتھ کیا ہے, ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں, اور کہتے کیا ہیں, کیونکہ جب لوگ اپنی مرضی سے قربانی دینے لگے تو موسیٰ نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو, کیونکہ یہ کام لاویوں کا ہے, یہ کام تم غلط کر رہے ہو, تم یہ قربانی نہیں دے سکے. تو اس نے آ کے کہا کہ تم ان کو کیا کرو, منع نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق
हम सब के सब क्या हैं? मुकद्दस हैं। वो अपने आप को ये साबित करता है कि हम भी क्या हैं? मुकद्दस हैं। हम भी कपूर जला सकते हैं, हम भी कुर्बानियां चढ़ा सकते हैं। इसलिए मूसा तू हमें ना मना कर, तू ऐसे हमारे ऊपर क्या लग गया है? हाकिम बन के बैठ गया है। उसकी महल हल्के मूसा को जो चुना गया था, वो खुदा ने चुना था, उसने उनका मुनसब बनाया था, खुदा ने उसको मुकर्रर किया था कि वो उनकी आगे आगे चले, उनके यहाँ सरबराह बने। वो जगह जगह में हम देखते हैं अच्छा सरबराह क्या होता है। लास्ट पेज के देखेंगे 21 और 20 में कि किस तरीके से खुदा सलाह देने लगता, बार बार खुदा जब भी सलाह देने लगता है तो मूसा और हारून क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं आजिज़ी के साथ। खुदावन नहीं, हालांकि उनको पता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। यहां पर भी ये लोग क्या करें? बगावत कर रहे हारून और मूसा के खिलाफ कि तुम खुद ही बन गए हो सारा कुछ, हम भी तो पाक हैं, हम भी कुर्बानियां कर सकते हैं, हम सारे काम करेंगे जो तुम करते हो। लेकिन हारून और मूसा उनको क्या करते हैं? मना करते हैं। फिर 4 ऐसे पढ़े, फिर क्या हुआ? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा, फिर उसने कोरा और उसके कुल क्या किया? मूसा क्या हुआ? मुंह के बल गिरा। कि इसने कितनी बड़ी बात कह दी, ये कितनी बड़ी बात कर रहा है, क्योंकि मूसा को पता था कि ये क्या है? बगावत है, कहीं खुदा इसको मार ना दे। खुदा के सामने वो क्या करता है? मुंह के बल गिर जाता है। और फिर क्या कहता है? कि पढ़े। फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है। कौन उसका है, कौन मुकद्दस है। कल ऐसा करेंगे, कल सारे बाहर आ जाना और हम खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे और फिर खुदा साबित करेगा कि खुदा ने किसको पसंद किया और किसको नापसंद किया है। मूसा ये बात कहता है। जी आगे। और वो उसी को अपने नजदीक आने देगा, वो उसी को अपने नजदीक आने देगा जिसको खुदा पसंद करता। आज भी खुदा उनको नजदीक आने देता है जिनको खुदा पसंद करता है। अब काम हमारे गलत होते हैं और हम सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं जैसे वो बेटी या बेटा खुदा के करीब है, मैं भी वहां पे चला जाऊं। जब तक आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करेंगे उतनी देर तक आप खुदा की नजदीकी में जा नहीं सकते। खुदा कहता है, यहां पे मूसा कहता है कि कल पता चल जाएगा। खुदा जिसको पसंद करेगा उसको अपने नजदीक आने देगा, दूसरे को वो नजदीक नहीं। आज भी वही कुछ है। जिसको खुदा पसंद करता है उसको अपने नजदीकी में रखता है, उससे खुदा बड़े बड़े काम लेता है, उसके जरिए से मौजाद करता है। लेकिन जिसको खुदा पसंद नहीं करता उसको अपने नजदीक भी नहीं आने देता। जी पढ़े आगे। क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो जिसको वो खुद चुनेगा, लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये खुदा का वादा है। खुदा जिसको चुनता है उसी से काम लिखता है। लिखा है कि अब क्या है? जिसको खुदा चुनेगा फिर क्या होगा? क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। वो उसे अपनी कुर्बत भी देगा। जिसको खुदा चुन लेता है उसे अपनी कुर्बत का मतलब अपने पास अपनी मोहब्बत में रखता है। अगर उसकी कुर्बत में जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उसको पसंद आए। और पसंद दूसरे वक्त आएंगे जब हम उसके अच्छे काम करेंगे, जो वो चाहता है वो हम करेंगे। वो चाहता है चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठ ना बोल। खुदा बड़े बड़े काम मना करता है लेकिन वो सारे काम हम करते रहते हैं। पिछले दिनों रोजे शुरू हुए, उनको पहला रोजा था, उसके बाद बहुत सारी बातें शुरू हुई। कोयटे से मुझे एक बहन ने मैसेज किया कि भाई साहब जुमे वाले दिन मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि बहन और सारे काम करने, गाला भी करने, नशा भी करने, चोरियां भी करने, हर वो काम हम कर गुजरते हैं रोजों में जो करने रवा नहीं है। एक मीट खाने से क्या, कहां पे लिखा है कि मीट ना खाएं? कहीं लिखा है? आज हम क्या करते हैं? हम ऐसी बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें ही है। बाइबल मुकद्दस कहीं भी हमें मना नहीं करती। फिर हमने रात वाले दिन हमने भी रात का बुत बनाया, हमने भी रोजे रखे। उस दिन हमने पहला रोजा रखा, वो तो मेरा रोजा होता है, मैंने तो रोजा रखना ही रखना होता बुत को। किसी ने ये भी सवाल किया कि भाई साहब आप रात लगाते हैं, ये तो कैथलिक वाले लगाते हैं, लेकिन इसकी अहमियत क्या है? इससे निजात का कोई काम नहीं होता, ये जेब में रखें ना। आपके ईमान को खराब किया जाता है,
कुछ नहीं होता, लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि ये 40 दिन जो है वो आप अपने आप को जांच लें, जांचे अपने आप को। स्टेटस लगाना बंद कर दे, गाने लगाना बंद कर दे, गाने सुनना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। वो तमाम गलत काम जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो 40 दिन छोड़ दे तो वो आपका रोजा है। रोजा ये नहीं कि खाली पेट रख ले, खाली पेट रखना रोजा नहीं है। रोजा ये है कि किसी बुरी आदत को अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, ये रोजा है। रोजा राग लगाने का मकसद भी यही होता है कि आप अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, अपने अंदर देखें। अगर कोई आप गलती कर रहे हैं तो उस 40 दिनों में आप उसको क्या कर ले, सुधार ले, खत्म कर ले। रोजा ना रखें, लेकिन उस चीज का रोजा रख ले जो आप करते हैं। अगर आप नशा करते हैं, 40 दिन आप नशा ना करें तो 40 दिन के बाद आपकी नशे की आदत जाती रहेगी। आप गालियां निकालते हैं, 40 दिन गालियां ना निकालें तो देखें 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंज आता है। ये है राग का बुत, हम इस तरह उसको मनाते हैं। लेकिन सवालात बहुत होते हैं, हम स्टडी नहीं करते, हम सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन बहस करना बड़े अच्छे तरीके से जानते। बहस कर लो जिंदगी, खुदा का कलाम पुलिस वसूल करते हैं। कुछ लोगों को ये आदत होती है, उनको मर्ज होता है, वो जानते कुछ नहीं है, लेकिन वो लफ्जी तकरार करने का उनको क्या होता है, मर्ज होता है। वो तकरार करना पसंद करते हैं, लेकिन हमें तकरार करने की जरूरत नहीं। ये मैं इसलिए आज खुद का बात नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग आपसे भी सवाल करेंगे, आप उनको ये जवाब दे सकते हैं। रोजा पेट का नहीं, रोजा आपके अंदर का है। जो चीज आप करते हैं, अगर गलत काम करते खुदा के मुखालफत में कहीं कुछ काम करें तो इसको क्या कर दे, छोड़ दे। यहां हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, पढ़े क्या गया फिर। सो करो और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर डाल लो, अपना अपना बखूर डाल लोगे, हाँ जी, और उनमें आग भरो, उनमें आग भी भरना, और खुदावंद के हुजूर कल उनमें बखूर जलाओ। फिर कल खुदावंद के हुजूर में क्या करना, बखूर जलाना। वहां पे फैसला हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है जी। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वही मुकद्दस ठहरेगा। जिस शख्स को खुदा मुकद्दस करेगा उसी को क्या करेगा, चुने, क्योंकि उसने क्या कहा था, हम सारे के सारे क्या हैं, मुकद्दस हैं। अब मूसा उसका जवाब देता है, मूसा कहता है कि खुदा कल चुनेगा, जिसको चुनेगा उसी का पता चलेगा कि ये मुकद्दस है। अगर खुदा चुनेगा नहीं तो इसका मतलब है कि वो शख्स मुकद्दस नहीं है जी। पढ़े। एलामी के बेटों, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं, बड़ी बातें तो तुम करते हो, तुमने ये सारी बातें कही हैं, तुमने वो वादा याद दिलवा दिया है जो खुदा ने किया था। अब वो वादा क्या था, इधर वो पढ़ने, जो वो वादा किसका लेके किस तरीका उन्होंने लोगों को जमा किया था। खुरूज की किताब 3 बाब उसकी 8 आयत को पढ़ दे जरा। ये हवाला देते थे वो, और वो इस हवाले को देके लोगों को क्या कर लिया था, इकट्ठा किया था। उसने क्या हवाला है, पढ़े जरा। और मैं उतरा हूं कि उनको अब खुदा उतरा है, खुदा ने कहा मैं उतरा हूं। मूसा ने नहीं वादा किया था, मूसा ने वादा किया था, लेकिन कई बार हम भी ऐसे ही काम करते, वादे खुदा के होते हैं, लेकिन हम लोग, अगर तू भी यह गल की थी, तू कलाम से गल की थी और कारे पूरा। यहां पर भी यही कुछ हम देखते हैं कि मूसा बेगुनाह था, मूसा ने वादा नहीं किया, खुदा ने वादा किया था, लेकिन अपनी हरकतों से वो अभी तक उस मुल्क में पहुंचे नहीं थे। ये भूल गए थे कि हमारी हरकतें क्या है, हम क्या करते हैं। खुदा से हर वक्त हम बगावत करते रहते हैं, खुदा हमसे नाराज रहता है। आज हम भी कई बार यही काम कर होते हैं और खुदा हमारे मुखालफत में होता है। हम खुदा हमको नाराज करके बैठे होते हैं और चाहते हैं हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो जाए, हमारी बीमारियां खत्म हो जाए, हमारे घर से परेशानियां खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी सोचा है कि हमने बगावत कितनी की हुई है। यहाँ पे लिखा है कि खुदा कहता मैं उतरा हूं जी। पढ़े। और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, ताकि मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी किरानियों और हितियों और अमोरियों और फरसियों और हिवियों और यबूसियों को मुल्क में पहुंचाऊं, वहां पे पहुंचाऊं। ये खुदा का वादा था, और ये हवाला वो देता था बार बार सारे लोगों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, बागी हो जाए। जो बाकी हाले दिक्कत उत्थे तो सान पहुंचाए नहीं, अभी तो बिया बांच ही फिरी जा रहे हैं। कई बार होता है ना इस तरह, हम भी ऐसे कर लेते, वो पादरी वे फलाने ना बड़ा करता, मेरे ना नहीं करता।
हरून ना बड़ा करन दे हमें, हरून से बहुत मोहब्बत करता है, हरून को कहन भी बना दिया है और हमें नहीं आगे लेके जा रहा। हम क्यों हम इसके गुलामी में रहते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचें कि खुदा चुनता है। यहाँ पे लिखा है कि ये बात, ये हवाला देके वो बार बार लोगों को क्या कर रहा था, उकसाता था और लोग उसकी महारफत में क्या है बढ़ते जा रहे थे और करते करते 250 लोग जो थे वो वहां पे जमा हो गए। वापस आ जाइए आप। तो मूसा ने कोरा की तरफ मुखातिब होकर कहा, बनी इस्राएली सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जमात से चुनकर अलग किया। तुम्हें बनी इस्राएल की जमात से क्या है अलग किया। आज भी जो लोग चुन लिए जाते हैं, पास्टर भी कई बार चुनते हैं, मैंने भी चुने, टीम बना दी, क्वेर चुनी गई, ये सारे लोगों को क्या है ये अलग हो जाते हैं, ऐसे कलीसिया से अलग होते हैं। लेकिन अपने आप पर गौर करें, हम अलग तो हैं, लेकिन क्या हम अलग होकर कोई काम भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हम लोगों से अलग भी नजर आए कि हम भी लोगों की तरह ही हैं। अगर हम ऐसे हैं तो फिर खुदा मेरे हाल आपको चुनने के लिए तैयार अभी नहीं है। इंतजार करें कि खुदा आपको कब चुनता है। खुदा उसने मूसा ने कहा कि तुम इसको छोटी बात समझते हो, मैं तुम्हें बनी इस्राएल कौम से क्या कर लिया, खुदा ने अलग कर लिया है। तुम अलावी कराने के हो, तुम काहिन नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें चुन लिया गया है। इंतजार करो, शायद खुदा आपसे भी काम ले ले। जी आगे पढ़े। ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे, हाँ जी, और तुम खुदावंद के मस्कत की खिदमत करो और जमात के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? क्या अब तुम पास्टर भी बनना चाहते हो? क्या अब तुम क्वेर का लीडर बनना चाहते हो? क्या तुम अब टीम का लीडर बनना चाहते हो? यही बातें वहां पे हो रही है। लिखा है कि क्या अब तुम कहानत भी चाहते हो? खुदा ने अलग तो कर लिया है। कलीसिया जो है वो आम लोगों से अलग हो जाती है, वो आम लोगों में नहीं गिनी जाती। आप यहाँ पे इबादत कर रहे हैं और बाकी जो आम लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने कामों में मगन है। हम लोगों से क्या है अलग हो चुके हैं। खुदा ने हमें चुन लिया है। जो चुने हुए लोग हैं वो खुदा की कुर्बत में रहते हैं। अगर आप चर्च आए हैं तो आप खुदा की कुर्बत में हैं, आप खुदा की कुर्बत में हैं, आप खुदा की नजदीकी में हैं। लेकिन जो वो लोग घरों में बैठे हैं वो खुदा के करीब नहीं है, ना खुदा की कुर्बत में है। खुदा उनको शायद पसंद भी ना करता हो। पढ़े आगे। इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? हाँ जी। फिर मूसा ने तातन और इब्राहिम को जो इलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा। उन्होंने कहा कि हम नहीं आते। उन्होंने कहा हम नहीं आते। मूसा ने उनको बुलवाया कि आओ तुम भी बाहर, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। जी आगे। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें अब ये फिर वही वाला है, वाला दे रहे ना। क्या ये छोटी सी बात है कि तू हमारे साथ वादा करके आया था कि खुदा वो उस मुल्क को देगा जहाँ दूध और शहद बहता है, तू हमें उस मुल्क से ले आया है जहाँ पे दूध और शहद बहता था। गुलामी में रहना पसंद कर रहे थे, गुलामी में निकले, लेकिन अभी तक गुलामी उनके अंदर से बाहर नहीं निकली थी। फिर वही बात कि तू हमें वादा करके लेके आया, तू वादा ही नहीं पूरा कर रहा। पड़े जी। ऐसे मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है। क्या है? निकाल लाया है। खुदा ने कहा मैं वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, तू वहां से निकालेगा जहां दूध और शहद क्या था, बहता था। वो कहां पे रहते थे? मिस्र में, मिस्र की गुलामी में। और वाला दे रहा कि वहां दूध और शहद बहता था, तो हमें वहां से निकाल के ले आया जी, कि हम कभी आबाद में हलाक करें। हाँ जी। और इस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर अब तो सरदार बन के हम पे हुक्मरानी भी करना शुरू हो गया है। क्या है? मुखालफत का मुखालफत। तो हमें एक तो उस मुल्क से निकाल के ले आया, इस बियाबान में बिठा दिया है। अब तो हम पे हाकम भी बन गया है और तो हम पे हुक्म पर हुक्म चलाता रहता है। लेकिन मूसा जो है वो खुदा की मर्जी की मुताबिक क्या करता था, हुक्म चलाता। कभी उनको दबाने की कोशिश, जब खुदा कहता था कि ये कर दे तो वो करता था। अपनी मर्जी से मूसा कुछ नहीं करता था। पढ़ेगा जी।
माँ सिवाय इसके कि तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहाँ दूध और शहद बहता है, हाँ जी, और ना हमको खेतों और पाकिस्तानों का वारिस बनाया। ना हमें पाकिस्तान और उन खेतों का वारिस बनाया है। हाँ जी, क्या तो इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? क्या तो इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? क्योंकि वो 250 लोगों को इकट्ठा कर चुका। उन्होंने समझा हम काफी लोग हो गए मेरे पास, मैं सब बड़े लोग हो गए, 250 लोग हो गए। अब मैं क्या करता, मैं इससे इसकी मुखालफत कर सकता हूँ, इसलिए वो बार बार हवाले देता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, और लोग उसकी हमायत में खड़े थे, वो बाहर आगे खड़े थे कि हम देखेंगे कि मूसा के साथ क्या होता है, और फिर वो बाहर आके खड़े होते हैं, लेकिन वो अंदर से ये बातें कर रहा है। जी पढ़े, हम तो नहीं आने की, हम तो नहीं आने के, हम नहीं बाहर आ रहे, हम तेरी हुक्म गुलामी नहीं कर रहे, हम तेरा हुक्म नहीं मानते, हम तेरी गुलामी नहीं करेंगे, हम तेरी बात सुन के बाहर नहीं आएंगे। जी, तब मूसा नहायत तैश में आकर, तब मूसा नहायत तैश में आ गया। हाँ जी, नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू इनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर, तू इनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। कई लोग हदिये देके क्या करते, समझते कि बड़ा कुछ कर लिया है, बड़ा कुछ कर लिया। लिखा है तू इनकी हदियों की तरफ तवज्जो ना कर। जी, मैंने इनसे एक गधा भी नहीं लिया, मैंने इनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचा, ना इनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हाँ जी, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो, हाँ जी, तो भी हो और तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को बेशुमार में 250 होगे, खुदावंद के हुजूर लाओ, और तू भी अपना बखूर दान लाना और हारून भी लाए। सुनो ने अपना अपना बखूर दान लेकर और उन पे आग रखकर उन पर बखूर डाला, और खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए, और कोरह ने सारी जमात को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर दिया। सारी जमात को उनके खिलाफ, जमात के सामने सारी जमात को खड़ा कर दिया, हारून और मूसा के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें उनको सिखाई, ऐसे ऐसे ख्वाब उनको दिखाए, और वो लोग भी उनकी मुखालफत में खड़े हो गए। जी पढ़े, तब खुदावंद का जलाल सारी जमात के सामने, फिर खुदा का जलाल सारी जमात पर क्या हुआ, नमाया हुआ। खुदा वहां पे उतर आया, खुदा के खड़ा हो गया, और खुदा ने आते क्या कहा, पढ़े जरा। और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग, हारून और मूसा से खुदा ने कहा इस जमात से अलग हो जाओ, क्योंकि अभी मैं इस जमात को क्या करूं, भस्म करने लगा हूं। ये बागी है, ये मेरी मुखालफत करते हैं, अब इनको मैं क्या हूं, भस्म करने लगा हूं, कहीं तुम भी ना इनके साथ चल जाना, इसलिए तुम दोनों क्या हो जाओ, अलहदा हो जाओ, अलग हो जाओ। लेकिन फिर भी देखें खुदा के बंदे क्या कहते हैं। जी पढ़े, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर दूं, ताकि मैं एक पल में इन सबको क्या कर दूं, भस्म कर दूं। जी, तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, हाय क्या बात है, ये है मोहब्बत अपनी कौम के लिए। फिर भी वो क्या करते हैं, मुंह पे बल गिर जाते खुदा के हुजूर, खुदावंद ना कर, ऐसा ना कर। खुदावंद गलती तो 2-3 लोगों की है, लेकिन तो ये 250 लोगों को भी मारने लगा है। ये तो उनकी बातों में आ गए हैं। कई बार हम भी जो किसी की बातों में आके किसकी मुखालफत करते हैं, खुदा की मुखालफत करते हैं, तो समझ जाएं खुदा उतना ही गजबनाक होता है जितना उनके लिए होता है। यहाँ पर लिखा खुदा गजबनाक था, खुदा ने कहा मैं सबको एक पल में क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, तुम थोड़े से लैदा हो जाओ। खुदा चाहता तो अंदर ही उनको कथा उनके साथ बचा सकता, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको कहा शायद तो जो खुदा इतना गजबनाक था, खुदा ने कहा मैं इतनी आग भेज दूंगा, हो सकता मूसा और हारून भी उसमें जल जाए, इसलिए वो उनको कहता है शायद तो जो। लेकिन मूसा हारून क्या है, मुंह के बल गिरते हैं और क्या कहते हैं, आए खुदा सब बशर की रूह के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से, एक आदमी के गुनाह के सबब से तो सारी कौम को मार देगा। खुदा कभी ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन कई बार खुदा गजबनाक होता है जब हम गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं। लिखा है कि बड़ी इसराइल कौम के लिए फिर वो शफायत कर रहे, और क्या कहते हैं, पढ़ दे इसको भाई, इसको 21 तक खत्म कर दे। क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू जमात से कह कि तुम कोरह और तातन और इब्राम के खैमा के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर तातन और इब्राम की तरफ गया, और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। अब यहाँ पे नहीं, बस ठीक है,
यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा को खुदा कहता है कि ठीक है, अब फिर क्या करो, उन दोनों के खैमों से लोगों को क्या कर दूर हो जाओ, अब मैं उन दोनों को सजा दूंगा, उन्हीं को सजा दूंगा जिन्होंने ये गुनाह किया और इन लोगों को भी गुनाह में शामिल होने की दावत दी है। आज जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कहीं हम भी हर वक्त खुदा की बगावत में तो नहीं रहते, कहीं हम किसी के खिलाफ बातें तो नहीं करते रहते, हम कई बार जाने अनजाने में क्या है खुदा के खिलाफ बातें कर गुजरते हैं। हमें इनसे बचने की जरूरत है ताकि हम बच जाए। और पास्टर या खादम जो है वो हर वक्त कलीसिया के लिए खुदा से शिफायत करता रहता है, दुआ करता रहता है। आप भी दुआ किया करें और अपने गुनाहों का इकरार किया करें कि खुदावन जो बातें भी हम